بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بات آئی تھی کہ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں اور پانچوں نمازوں کے نام بتایا گیا تھا: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ پہلی نماز فجر ہے جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ دوسری نماز ظہر جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، یعنی سورج جب بیچوں بیچ آسمان کے بیچوں بیچ چلا جائے اور اس کے بعد جب پچھم کی طرف ڈھلنا شروع ہو جائے تو وہی وقت ہوتا ہے ظہر کا، وہاں سے وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری نماز عصر جو سورج چھپنے سے 2 ڈیڑھ گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ چوتھی نماز مغرب جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اور پانچویں نماز عشاء جو 1.5 2 گھنٹے رات آنے پر پڑھی جاتی ہے، یعنی سورج غروب ہونے کے 1.5 2 گھنٹے بعد پڑھی جاتی ہے۔ سوال: اذان کسے کہتے ہیں؟ جواب: جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز سے کچھ دیر پہلے ایک شخص کھڑے ہو کر زور زور سے یہ الفاظ کہتا ہے۔ کیا الفاظ ہے؟ وہی جو اذان میں ہم لوگ سنتے ہیں بار بار: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ترجمہ ہے: گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دونوں کا ترجمہ یہی ہے۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح۔ آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ تو ہم لوگ پہلے سے جانتے ہیں۔ ان الفاظ کو اذان کہتے ہیں، یہی ہے اذان۔ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم بھی 2 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ فجر کی جو اذان ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہنے کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، کیونکہ اس وقت سارے لوگ سوتے ہیں، تو اس لیے یہ الفاظ کہا جاتا ہے کہ نماز جو ہے نیند سے بہتر ہے، اس اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے۔ سوال: تکبیر کسے کہتے ہیں؟ تکبیر کسے کہتے ہیں؟ جواب: جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک شخص وہی کلمے کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے پہلے ایک شخص جو امام سے پیچھے ہوتے ہیں یا دائیں بائیں بھی ہو سکتے ہیں، تو اذان کے کلمات کو دہراتے ہیں۔ تو وہی کلمے ایک شخص کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں، اسے اقامت اور تکبیر کہتے ہیں۔ اسے اقامت بھی کہتے ہیں اور تکبیر بھی کہتے ہیں، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ تکبیر میں اور اذان میں کیا فرق ہے؟ تو تکبیر میں فرق یہ ہے کہ حی علی الفلاح کے بعد یہاں قد قامت الصلاح 2 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ قد قامت الصلاح 2 مرتبہ اذان کے کلموں سے زیادہ کہا جاتا ہے، یعنی نماز کھڑی ہو چکی ہے۔ سوال: جو شخص اذان یا تکبیر کہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: جو یعنی اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں اور تکبیر پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تو جواب ہے: جو شخص اذان کہتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں، اور جو تکبیر کہتا ہے اسے مکبر کہتے ہیں۔ جو اذان کہتا ہے اسے مؤذن، اور جو تکبیر کہتا ہے اسے
मुकब्बिर कहते हैं। सवाल, बहुत से लोग मिलकर जो नमाज पढ़ते हैं उसमें उस नमाज को और नमाज पढ़ाने वाले को और नमाज पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? तीन सवाल है एक सवाल के अंदर। एक सवाल तो यह है कि सब लोग जो मिलकर नमाज पढ़ते हैं उस नमाज को क्या कहते हैं, और दूसरा सवाल है कि नमाज जो पढ़ाते हैं उसको उनको क्या कहते हैं, और पीछे जो लोग नमाज पढ़ते हैं तीसरा सवाल यह है कि उनको क्या कहा जाता है। तो जवाब यह है कि जो बहुत से लोग जो नमाज मिलकर पढ़ते हैं उस नमाज को जमात की नमाज कहते हैं। जमात से नमाज पढ़ रहे हैं ना, नमाज तो वही है लेकिन एक साथ पढ़ने से वो जमात की नमाज है। जवाब, बहुत से आदमी मिलकर जो नमाज पढ़ते हैं उसे जमात की नमाज कहते हैं, और नमाज पढ़ाने वालों को इमाम, जो नमाज पढ़ा रहे हैं उनको इमाम कहा जाता है, और उसके पीछे नमाज पढ़ने वालों को मुक्तदी कहते हैं। कोई मुश्किल तो नहीं है किसी में? सवाल, अकेले नमाज पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? एक शख्स है अकेले पढ़ रहा है, चाहे घर में पढ़ रहा है या मस्जिद में पढ़ रहा है। मस्जिद में मान लो जमात चली गई, जमात खत्म हो गई, उसके बाद कोई पढ़ेगा तो अकेले ही पढ़ेगा, तो ऐसे शख्स को क्या कहते हैं? जवाब, अकेले नमाज पढ़ने वाले को मुनफरिद कहते हैं। मुनफरिद कहते हैं। सवाल हो सकता है कि मुनफरिद किसे कहते हैं, तो वही जवाब है कि अकेले नमाज पढ़ने वाले को कहते हैं। यानी सवाल को जवाब में ले लो और जवाब को सवाल में ले लो। सवाल, जो मकान खास नमाज पढ़ने के लिए बनाया जाता है और उसमें जमात से नमाज होती है उसे क्या कहते हैं? जवाब आसान है बिल्कुल, उसे मस्जिद कहते हैं। यानी जो घर सिर्फ नमाज के लिए बनाया जाता है, नमाज पढ़ने के लिए, जमात से नमाज उसमें लोग पढ़ते हैं, तो उसे मस्जिद कहते हैं। सवाल, मस्जिद में जाकर क्या करना चाहिए? जवाब, मस्जिद में नमाज पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े, या कोई और वजीफा पढ़े, कोई भी वजीफा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, या दुरूद शरीफ वगैरह। तो मस्जिद में ये सब काम करना है, नमाज पढ़ना है, कुरान शरीफ पढ़ना है, या कोई और वजीफा पढ़ना है, या फिर कुछ नहीं पढ़ रहा है तो अदब से चुपका बैठा रहे, चुपचाप अदब से बैठा रहे। मस्जिद में खेलना कूदना शोर मचाना और दुनिया की बातें करना बुरी बात है। इन सब चीजों से गुनाह होता है। खेलना नहीं है, कूदना नहीं है, शोर मचाना, दुनिया की बातें करना, ये सब गुनाह की बातें हैं। सवाल, नमाज पढ़ने से क्या फायदा होता है? जवाब है कि नमाज पढ़ने से बहुत से फायदे हैं। यहाँ पर थोड़े से फायदे बताए जा रहे हैं, थोड़े से फायदे हम तुमको बताते हैं। नंबर एक, नमाजी आदमी का बदन और कपड़े पाक साफ और सुथरे रहते हैं। जो आदमी पाबंदी से नमाज पढ़ता है उसका बदन, कपड़ा, ये सब पाक साफ रहता है। आम तौर पर देखने में आता है कि जो नमाज पाबंदी से पढ़ता है वो कहीं जरा सी नापाकी अगर कहीं है तो उसे बचने की कोशिश करता है, अरे हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ना है, कपड़ा नापाक हो जाएगा। लेकिन जो नमाजी नहीं उसको क्या परवाह, उसको परवाह नहीं है, नमाज कपड़ा, बदन बदन नापाक हो जाए, कपड़ा नापाक हो रहा, तो उसको परवाह नहीं है। तो जो नमाज पढ़ता है पाबंदी से, तो पहला फायदा तो यह है कि उसका बदन कपड़ा साफ सुथरा रहता है। नंबर दो, नमाजी आदमी से खुदा राजी और खुश होता है, अल्लाह की रजा और खुशनुदी हासिल होती है, नमाजी आदमी से अल्लाह राजी होते हैं। नंबर तीन, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजी से राजी और खुश होते हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश और राजी होते हैं। नंबर चार, नमाजी आदमी खुदा ताला के नजदीक होता है। खुदा ताला के नजदीक होने के क्या मतलब है? मतलब यह है कि अल्लाह का कुर्ब उसको हासिल होता है, अल्लाह उसको अपना महबूब बंदा बनाते हैं। नंबर पांच, नमाजी आदमी की नेक लोग दुनिया में भी इज्जत करते हैं। जाहिर सी बात है, ये देखने में, मुशाहिदे में भी ये बात आती है कि जो नमाजी होते हैं पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं उनकी लोग इज्जत करते हैं। नंबर छह, नमाजी आदमी हम्म, बहुत से गुनाहों से बच जाता है। जो नमाज का पाबंद होता है, बहुत सारी गुनाह ऐसे होते हैं जिससे आदमी आमतौर पर नहीं बचता, लेकिन नमाजी आदमी बचने की कोशिश करता है क्योंकि उसके जहन में ये बात रहती है कि हम नमाज पढ़ते हैं। नंबर सात, नमाजी आदमी, आमतौर पर आदमी कहता भी है ना कि देखो नमाज भी पढ़ रहा है, ये भी कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, झूठ भी बोल रहा है,
हालांकि जो नमाज नहीं पढ़ रहा उसके लिए भी झूठ बोलना जायज नहीं है, सही नहीं है, उसके लिए भी गुनाह की बात है। लेकिन जब नमाज पढ़ता है आदमी, तो खुद ब खुद ये एक एहसास होता है कि नहीं हम नमाजी हैं, और झूठ बोलेंगे, गलत काम करेंगे, तो इसलिए बहुत से गुनाह से बच जाता है। नंबर 7, नमाजी आदमी को मरने के बाद खुदा ताला आराम और सुख से रखता है। नमाजी आदमी जब मरता है तो अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ उसको आराम नसीब होता है। इसके बरखिलाफ जो बेनमाजी है, तो फिर उसको अल्लाह के यहाँ सजा दी जाती है, वो आराम और चैन और सुकून से नहीं रहता है। सवाल, अब यहाँ से नमाज में क्या क्या पढ़ना है, नमाज शुरू किस तरह से करना है, और शुरू से लेकर क्या क्या पढ़ना है आखिर तक, वो सारी बातें बताई जाएंगी। तो जो पढ़ाया गया इसी को 2-4 मरतबा पढ़ लिया जाए, यहाँ से इंशाल्लाह कल पढ़ाया जाएगा। ठीक है रयान, काशिफ? जी। ठीक है, समझ में आ गई बात? कुछ तो मुश्किल नहीं हाँ। है, आसान है सब। नहीं, मुश्किल इसमें क्या है। हम्म। तो इसको पढ़ लेना है 5-7 मरतबा कम से कम, ध्यान से पढ़ लेना है, बहुत वक्त नहीं लगेगा, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, हम कट करते हैं। जी। अस्सलाम जी, वालेकुम। सलाम। बढ़िया।